रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। वाला ग्रुप वालों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਾ ਜੀ उम्मीद करते हैं आप ठीक है कि सवेरे 9 बजे तो लैके 11:57 यानी कि 9 ਤੋਂ 12 कह सकते हो ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ AM 770 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ 11:57 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। और पंकज जी का मैं वेलकम कर लेना, पंकज जी भी नाल जुड़ गए। पंकज जी बहुत वेलकम सर, की हाल है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ते मेरी तरफों सब नु 12 बज गए। हां गुड आफ्टरनून। 12 बज गए जी, इट्स नून राइट नाउ, इट्स नून टाइम। गुड आफ्टरनून सर। वैसे 12 बज गए ने ते इधर देखो 272 बना देते ने स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स ने। क्या गेम खेली आज कोलकाता ने, और मैं डिटेल्स अगे चल के शेयर करांगा, बट व्हाट एन अमेजिंग गेम। बाकी कॉलर्स भी लैने, पीके जी का भी स्वागत करते हैं, तुहाडे तो ओपनिंग स्टेटमेंट भी सुनांगे। बाकी हाँ जी, नाल दी नाल कॉल्स लेंदे चले जाने। नेक्स्ट कॉल जी। हाँ जी बलजीत जी, तुसीं आउंदे रहो। नेक्स्ट कॉल, गो हैड। हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। मेरा सवाल पंकज मोगा जी नूं है। ਜਿਹੜਾ TFS है ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 6.3 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ $100,000 ਹੈਗਾ, TFS ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ $100,000 ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਐਡ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਰੀਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ TFS 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? देखो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਨਰਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ TFS 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ 10-12% ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6% ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ 6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें पंकज जी फोन नंबर दे दो पहला अपना फिर। जी, मेरा फोन नंबर है 6472851007। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਪਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਕਮਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ,
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਗਵੀਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 80 to 90% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 98% ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ 60% ਨੇ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ, 40% ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੁਧਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द काइंड वर्ड्स एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਇਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ 100% ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਯੁਧਵੀਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਯੁਧਵੀਰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਵੀਕ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ BNN ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ TV ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼। ਬਟ ਟੁਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਹੈਵ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਹੈਵ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਂਡ ਪੀਕੇ ਜੀ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। 18 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜੱਫੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਦਿਸ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲਾਇਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ
मेरा बीपी हाई हो गया, उन्होंने मैं बुरी तरह डांट मारती। मैं कहा खबरदार तू इन्वेस्टमेंट की थे, बिल्कुल ही करनी, चली जा, तू सिंगल मदर है, जोड़ के तू परेशान हो गई है। और उन्होंने किसी ने सलाह देती कि फिक्र ना कर, तेन असाइनमेंट वेच के तेन पैसा 3 गुना करा देंगे। मैंने कहा अज जो असाइनमेंट वेच रहे ने उन्होंने पैसा डूब गया, जो उन्होंने डिपॉजिट दिता डूब गया। अगर यह सिचुएशन फिर आ गई 3 साल बाद तो तेरी है सिंगल मदर इन्ना पैसा तेरा डूब जाएगा, नहीं कर रही इन्वेस्टमेंट। उसके अखा थोड़ा जिहा आंसू जो आया, मैं कहा यार मैं कितने ज्यादा ना डांटता हो। फिर मैं थोड़ा सा प्यार किया, मैं कहा बेटा मैं ज्यादा डांटा, कहते नहीं डांटा नहीं आपने, मैं तो गलती करके आई हूँ तुम्हारे पास। मैं कहा क्या? कहती मैं तो एक बुक करके आ गई हूँ किसी के साथ। तो मैं कहा मेरे पास क्या करने आई थी? कहती मैं जो इन्होंने गल की थी ना बलजीत जी ने, सेम उन्हें गल की थी, ताई मुझे गल याद आ गई। मैं क्या कितने आया ना मैं आपके पास जाऊं और वहां मुझे डांट पड़ जाए और मैं आपका सुनती हूँ कि भाई तू जो है नहीं करेगी और मैं तो करने के मूड से थी तो अब आई हूँ। मैं कहा तू बता कर सकती है? उन्होंने मुझे नंबर्स कैलकुलेट करके देते। उन्होंने एजेंट ने भी कहता तेरे को कागज बना के लोन ले देंगे, तेरे को असाइनमेंट कर देंगे, फलाना कर देंगे, जिसका मैं फैक्ट्स दस से सारे और वो भाई वो कहती मैं कैंसिल करा सकती हूँ। मैं कहा कूलिंग पीरियड है, करा सकती है जा। लॉयर मेरे को बैठे से उसका साढ़े इन हाउस ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं गल कराई, मैंने दसिया कि देख उन्होंने किसी ने भी कहता उसको शो ही नहीं करेंगे, टैक्स ही सारा बचा देंगे। मतलब इन्ने नलायक ने समझाने वाले कि कनाडा कहते हैं थोड़ी सेल भी शो ही नहीं करेंगे, कुछ टाइटल ना किस तरह जाएगा। इन्ने बदनाम करने वाले रियल्टर कुछ बैठे हुए ने रियल एस्टेट में। तो वो सर अगर बलजीत मैंने डांटिया ना एक प्यार की डांट सी, एक एल्डरली वाली डांट सी, अंकल वाली डांट सी, वो रियलाइज करके चली गई। उन्होंने कैंसिल करा, कैंसिल तूने नहीं लेना, तूने बच्चे को पढ़ाना तो यही पैसा थोड़ा सा और जोड़ के इससे पढ़ा ले, बच्चे को लोन भी मिलेगा पढ़ने के लिए, ना कि तो अपना पैसा डुबो दे। तो कई बार सच्चाई होती है जी तुहानू कहनी पैंदी है, और कई बार गुस्सा इस करके नहीं आता उस बंदे तो गुस्सा नहीं आ रहा होंदा, उन्होंने जिन्हें समझाया होंदा ना उल्टा सीधा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं सर ऐसा गल नहीं, सरेंडर तो दोनों एक दूसरे वास्ते करांगे ना, ताई पार्टनरशिप बनती हैगी ते कोई दिक्कत नहीं है, प्यार में बैठांगे। कुछ भी जिस तरह उन्होंने मंगल जी ने गल की डील ना करना, आधा घंटा पौना घंटा बैठो। मुझे बड़ा शौक है, मेरी एवरेज 6 अपॉइंटमेंट होंगी रोज की, और मैं जिस कारण है ना मेरा सक्सेस पता क्या होता है, पहले पूछते होंगे सी घर परिवार अच्छा कितनी बड़े खुश नजर रहे हो, डील कितनी हुई है, मैं कहना 2। आजकल पता क्या होता है डील चाहे कि नहीं हुई, जिस तरह कुड़ी ने उसने समझाया वो मेरा सक्सेस सीगा, उन्होंने मैं डांट के भेजता कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, दैट वाज मेरी सक्सेस स्टोरी। आजकल मैं कह रहा कि सक्सेस है मेरा सक्सेस होता है। अगर मैं बलजीत जी ने पूरा एक ट्रैक बना के दे दिया, पूरा चेकलिस्ट बना के दे दिया और फ्यूचर वास्ते प्लान करके दे दिया, प्रॉपर्टी ना लो, दैट इज माई सक्सेस स्टोरी। आज हम सक्सेस स्टोरी बदल चुकी है, यह होंगे सारा तरीका मिलन का, इस करके मिलोगे सर नो डिस्कशन एनीथिंग, बट वी कैन प्लान योर प्रोफाइल थोड़ा पोर्टफोलियो डिस्कस करके कुछ प्लान कर सकते हैं, दैट्स ऑल जी। ठीक है, थैंक यू। बट अजय हिम्मत अजय हिम्मत जुटा कोई नहीं सर, थैंक यू बलजीत साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी अगली कॉल बढ़ते हैं जी। गिरीश जी तुम आते रहो जी, नेक्स्ट कॉल सर। हेलो नमस्कार जी सबको जी। अच्छा पहला सवाल मुंगा साहब से। मुंगा साहब ये कार्बन टैक्स आजकल बड़ा हल्ले में है, इसके बारे में आपके क्या विचार है जी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, प्लीज बताइए। देखिए मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहूंगा इस सिचुएशन में, लेकिन इस वक्त टैक्सेस नहीं आई डोंट नो वो रोक भी सकते हैं। होल्ड ऑन मुंगा साहब, पॉलिटिकल नहीं, आप एक जनरल मिडिल क्लास और गरीब आदमी के पर्सपेक्टिव से बताइए प्लीज। वही बताना चाह रहा था मैं आपको कि जिस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी जा रही है उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से ये होल्ड होना चाहिए था, इस वक्त इसको नहीं लगाना चाहिए था बस, क्योंकि लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, उनका क्या वो रीजन। आप इसे सहमत नहीं है, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा मुंगा साहब ये सोना बड़ा महंगा ही होता जा रहा है, इस पर क्या विचार है? और आप तेल बात कर रहे थे 85 की, तो 86 तक टच कर गया है, फर्क होगा ये बताइए प्लीज। देखिए डिपेंड करता है, अब बाकी चीजें इन्फ्लेशन की रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ है, बाकी चीजों पे इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि 800 से ज्यादा आइटम होती हैं जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। पिछली बार जब आया था थोड़ा सा ऑयल अप गया था, लेकिन बाकी चीजें जैसे सेलुलर नीचे आ गया था तो हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ गई थी। अब इससे ऑयल की वजह से अगर बाकी चीजें कुछ महंगी हो रही हैं और बिक रही हैं और ज्यादा बिक रही हैं और महंगी भी हो रही हैं, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम इस पे लेंगे। अदरवाइज हम कोर इन्फ्लेशन से क्या होता है कि ऑयल एंड फूड प्राइसेस ये दोनों निकाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत वॉलेटाइल चीजें हैं। जब इनको निकाल के हम कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं हमेशा, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट घटाया या बढ़ाया जाता है।
वो एक मेजर चीज। तो लेट्स सी, बट अब 85-86 पहुंचना बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट अब बाकी चीजों पे आ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ गई है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। सो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, अच्छा, अब सबरवाल साहब, ये भी पिछले हफ्ते अपने प्रधानमंत्री, ग्रेट प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब ने कोई रेंटल बिल ऑफ राइट्स किया है, आपने पढ़ा है, रिसर्च किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है भी वो। नॉट ओनली दैट सर, उन्होंने तो पूरा ये जो उन्होंने प्रपोजल दिया है प्रोविंस $5 बिलियन का अनाउंस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और घरों के ऊपर, कि 1 जनवरी 2025 तक अगर प्रोविंसेस ये एग्रीमेंट साइन कर देंगी, तो जिसमें उन्होंने कहा कि 4 4 स्टोरी घर, जिसको भी डग फोर्ड ने साफ मना कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो तो खैर आपका क्वेश्चन दूसरा है। उसी के अंदर ही ये जो आपका है बिल ऑफ राइट की आप बात कर रहे हैं, टेनेंट्स की बिल ऑफ राइट कि उनका क्रेडिट के ऊपर जो उनकी पेमेंट है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ेगा, विच आई थिंक इज ए वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज उसमें एक तो लैंडलॉर्ड का फायदा होगा, उसका क्रेडिट चेक हो जाएगा। क्रेडिट चेक अभी भी होता है, लेकिन पता चल जाएगा कि डेलिक्वेंसीज कहाँ थी, कहाँ उसने रेंट नहीं दिया, क्या क्यों रेंट नहीं दिया, क्या उसके कोर्ट केस चल रहे हैं। तो ये सारी बातें लैंडलॉर्ड के लिए हक में है। प्लस उसी बिल ऑफ राइट के अंदर लैंडलॉर्ड के भी अगेंस्ट को दबोचा है उन्होंने। मैं बड़ा इस बात से सहमत हूँ, जिसमें कि ये उसको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि ये कितने रेंट पे चलाया था, क्या था, टेनेंट क्यों निकला था, उसको पूरा बताना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। प्लस उन्होंने उसके अंदर $15 मिलियन लीगल खर्चों के लिए भी टेनेंट्स की हेल्प के लिए डाले हुए हैं। ये सारा कुछ उन्होंने किया है। और देखो ये अब बजट में लाते हैं कि 16 अप्रैल को है, कैसे लाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं एक और जो इसी बिल के अंदर ही जो उन्होंने ये बोला है कि 5 बिलियन प्रोविंसेस के लिए उन्होंने रखे हैं, और ट्रूडो साहब ने साफ ही मना कर दिया। और जो उनका फेडरल हाउसिंग एसोसिएशन फंड था 4 बिलियन का, वो बढ़ा के उन्होंने 4.4 बिलियन कर दिया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं और मोगा साहब बात करते हैं, उस दिन टीवी में भी कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ट्रांजिट वगैरह इसके ऊपर करना चाहिए था। ये भी उन्होंने इसके अंदर डाल दिया कि इसके ऊपर ट्रांजिट के साथ हम मिल के टाई करेंगे प्रोविंस के साथ, और ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर भी हम इसको पैसा लगाएंगे, काम करेंगे। देखो बातें तो बड़ी अच्छी है, खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, पर अमल की और बात होती है। और इससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन उठता है, अब तक सोए हुए थे क्या? इलेक्शन के पहले ये सब बातें बोलनी थी क्या? चलिए, इस पे एक और मोगा साहब से वापस आ जाता हूँ। मोगा साहब, ये जो बजट रिलीज होता है तो इसको तो पहले अंदर ही इंटरनल रखा जाता है ना, इसको बाहर आके पब्लिक में तो नहीं डिक्लेयर करते हैं ना। इसके बारे में एथिकल सरकार का क्या आपका विचार है? आज तक कभी हुआ है कि कोई आने से मतलब बजट पेश करने से पहले ही अंदर जाके उधर डिक्लेयर कर दो? इसके बारे में नहीं, ऐसे होता है ऐसा बहुत युद्धवीर जी मेरे एक्सप्लेन कर देंगे कुछ। मैं बहुत क्लोज रह चुका हूँ किसी सज्जन के साथ, और पहले ही सबको जाके बात हो गई थी कि ये हमारा अंदर ही सब कुछ डिस्कस हो चुका है, बजट वाले दिन ये पेश करेंगे। मेरे साथ प्रैक्टिकल तजुर्बा हुआ है ये। अच्छा, ठीक है। सबरवाल सर, यही जो अपन बात कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि वो जो कोई मान लीजिए, जैसे मान लो कि आपके घर में मैं किराए के लिए आया हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले किराएदार वाला कितना पैसा देता था और मैं उतना ही दूंगा, राइट? ऐसा कुछ है ना वो नए बिल में। तो आप तो मुझे बोलोगे चल पीछे हट, पीछे तेरे पीछे 10 और लगे लाइन में। इसके बारे में क्या विचार है? सर ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। आज तू भारी, कल मैं भारी। हाँ, नहीं तो ये तो पॉसिबल नहीं, सिंपल। हाँ, दोनों के लिए है ना सर। आज अगर मान लो आज मैं कहता हूँ कि चल पीछे हट, कल टेनेंट कहेगा चल पीछे हट। ये तो रूल होने चाहिए ना, रूल तो दोनों तरफ से होने चाहिए। अब कब क्या रूल का किसका बेनिफिट किसको मिलता है वो तो वक्त बताएगा ना सर। अच्छा सबरवाल साहब, देखिए आपके इतने हैं, ये बताइए उसमें से कोई ऐसा कितने परसेंटेज लोग जो जाके वहाँ क्रेडिट ब्यूरो में अपना एंटर करेगा कि भाई गिरीश ने किराया दे दिया, इस महीने गिरीश ने किराया दे दिया? सर एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था जब मैंने ऑर्डर लाके, मैं जिद्दी आदमी उस मामले में बहुत ज्यादा, कोई अच्छा है तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, कोई गलत है तो मैं बहुत ही ज्यादा गलत हूँ। मतलब कि अगले कहते हैं ना चोर के घर तक पहुंचो, मैं तो चोर के घर तक पहुंचता हूँ, सीधी सी बात है। पता चला कि लेने 10,000 थे, खर्च 50,000 हो गए, कोई बात नहीं, मेरे को बस पड़ गया पीछे तो पड़ गया। जैसे मैं सबको कहता हूँ कि क्रेडिट खराब करके रख दो अगले का, अगर रेंट नहीं दिया। कोई कहता छोड़ो ना जी, 4,000 खुद थे, तुमने 4,000 छोड़कर बाकियों का और सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उसको आदत पड़ गई, उसको खून लग गया, वो बाकियों को भी अब टेनेंट तंग करेगा। तो बात यह है कि मेरे साथ एक बार हुआ था, कोर्ट ऑर्डर लाने के बाद शरीफ के पास $360 जमा कराने के पास घर जाके उनका सामान उठवा के बाहर फेंकवाया था। एक बार जिद थी, बस मेरे साथ एक बार हुआ है। बाकी आपने इसी शो में सुना होगा, जब कोविड शुरू हुआ था मैंने ऐलान किया था कि जब ये जॉब्स जानी शुरू होगी तो मैंने कहा था कि मैं सब टेनेंट्स को मैंने ये दे दिया कि आप अपनी नौकरी के हिसाब से मेरा 1 महीने का किराया ना दें। अगर आपकी जॉब चली गई है पूरा, मुझे प्रूफ देते हैं और 1 महीने का रेंट ना दे। किसी ने
प्रूफ कहीं ने दिया और 1 महीने का रेंट मैंने नहीं लिया। किसी को हाफ डे जॉब मिल गई या 50% जॉब थी, उसने 50% किराया रख दिया। जिसकी जॉब नहीं गई उनको मैंने 1 महीने का नहीं छोड़ा। 2 बेईमान थे, मैं ओपनली कह रहा हूँ, 2 बेईमान थे जिन्होंने कहा कि जॉब चली गई, प्रूफ नहीं दिया, किराया रोक दिया। तो फिर जब मेरे लॉयर का नोटिस पहुंचा और उसके बाद उनको 1000 की और पेनल्टी भी लगी, तब कान पकड़ के आगे किराया दे गए। नहीं सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट देखिए ऐसा है कि अपने प्रधानमंत्री जैसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिसमें लोग जाके वहाँ पे डाटा भरेंगे तब उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ेगी। तो ऐसा आपको कितने लोग लगते हैं कि जो उसमें जाके हर महीने का लोग डालेंगे डाटा? वो अच्छा जो अगर किराया नहीं देता टेनेंट, अगर टेनेंट किराया नहीं देता तो या नहीं करेंगे, मेरे को लगता है थोड़े से ही आलसी होंगे 2-4 जो नहीं करेंगे, अदरवाइज सारे करेंगे। सबको करना चाहिए। देखो धीरे धीरे नॉर्म बन जाएगा ये। शुरू में तो नहीं समझ आती, पर धीरे धीरे जैसे वेकेंट टैक्स वाली बातें चल रही है, कई लोगों को पता ही नहीं है, कई को नोटिस आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स डबल कर दिया कि आपने फॉर्म नहीं भरा, लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है, लेकिन सिटी बड़ी इसको लीनियंट है, वो समझा रही है। धीरे धीरे नॉर्म बन जाएगा सर, शुरुआत तो होने दो। शुरू में कोई लोग नहीं भरेंगे, आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे 2-4 साल में एक नॉर्म बन जाएगा रिपोर्ट भरने का। सर वैसे एक बात कहूँ गिरीश जी, देखिए मैं हमारे पहले से ही चल रहा है ये, लेकिन ये क्या होता था, इक्विफैक्स के साथ रिपोर्टिंग होती थी लेकिन क्रेडिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। मैं आज भी करता हूँ मेरे टेनेंट्स का, मैं अभी भी करता हूँ ये। अगर आप जाएंगे फ्रंट लॉबी के नाम से है, उसमें आप ईयरली आप पेमेंट कर सकते हो, मेरे ख्याल $200 कुछ जाते हैं उसमें पूरे साल के, और उसमें बेसिकली आप 20 घर भी उसमें वो अलाउड है, टेनेंट आप कर सकते हो। अगर आप किसी को ओनर को फैसिलिटी दे रहे हो कि भैया ये तू कर सकता है जिसकी वजह से तेरा कभी रेंट नहीं रुकेगा, वो ओनर क्या करेगा? वो कहेगा नहीं मुझे नहीं करना, रेंट रुक जाए तो रुक जाए। ये क्या, ये कोई मतलब ही नहीं है सर मेरे हिसाब से तो सारे करेंगे ये। मैं तो पिछले 1-1.5-2 साल से कर रहा हूँ जब से ये आया है। अभी तो ये रूल लाने लगे हैं ये, तो अब तो क्रेडिट पे इफेक्ट आने लगेगा, विच इज अब तो इफेक्ट भी आ जाएगा ना। अभी तक तो सिर्फ शो होता था, बाकी इफेक्ट बोरोवेल भी एक और है इसके अलावा, जैसे उन्होंने कहा फ्रंट लॉबी, बोरोवेल के बाद जाके आप एंटर कर सकते हैं सब कुछ। जी। अच्छा मुंगा सर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये मिडिल क्लास और खत्म हो रही है, अभी गैप बड़ा बढ़ता जा रहा है, ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, ये थोड़ा बता दीजिए। ये कुछ देखिए ऐसे भाई मेरा बहुत ही बुरा है, क्लास खत्म हो जाए। क्लास कैसे खत्म कर सकते हो आप? अगर याद है इंडिया में पहले मिडिल क्लास होती थी, फिर एक अपर मिडिल क्लास भी आ गई थी। सर ये तो रिवोल्ट वाली बात हो रही है। जैसे मैं बता दूं, बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, मैं तो बीच में टोक रहा हूँ आपको। ये इतना बड़ा गैप होना इज लाइक ए रिवोल्ट। अब देखो ना आरसीएमपी ने क्या रिपोर्ट दी है, अभी मैंने पिछले हफ्ते से डिस्कस किया था कि ये डेंजरस लेवल होता जा रहा है। जब मिलेनियल्स घर ही नहीं ले पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जा रही है। उस दिन मेरे असिस्टेंट ने आगे मुझे बोला, सर मैं आपको एक बात बताऊं। मैं क्या कहता, जहां पर मैं खाना खाने जाता हूँ, पता क्या हुआ इस बार मैं, क्या हुआ कहता, बाहर 100 से ज्यादा लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो अंदर जाके मैंने मालिकों से पूछा, कहता ये सब सर्वर की नौकरी के लिए आए हुए बच्चे। 100 से ज्यादा लाइन लगी हुई थी लोगों की, बच्चों की 100 से ज्यादा। जब ऐसी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, आपका गैप बढ़ता जा रहा है, रईस होता जा रहा है, गरीब घर नहीं ले पा रहा, सोशल अनरेस्ट नहीं तो क्या है, ये तो बहुत डेंजरस लेवल है सर। हाँ तो वही बात आखिर में यही है कि ये चोरी चकारी गुंडागर्दी ये सब है ना, क्राइम ये सब बढ़ रहा है, ये सब उसी का ही वो है। बिल्कुल, पहले सड़कों से कारें उठाई जाती थी, फिर पार्कों से उठाई जाती, फिर पार्किंग लॉट से उठाई जाती, फिर ड्राइववे से उठाई जाती थी। अब गैराज को उखाड़ के अंदर से चाबी उठाई जाती है। अब आगे क्या होगा, सिर्फ पिस्टल रख के गाड़ी लेके जाई जाएगी। ये अनरेस्ट तो क्या है, मुझे बताइए। मैं तो 2 शर्ट और 2 पैंट पहन के चलता हूँ जी, एक ले भी गया तो एक बच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਵਾਟਸ ਦ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर नॉटिंग हिल condos now, and if I buy so, what do you expect the price at closing? जी पीके जी, नॉटिंग हिल। सबसे नॉटिंग हिल के बारे में बात बता दूं कि ये एक ऐसी कम्युनिटी बन रही है नॉटिंग हिल, जिसके अंदर इसका बिल्डर जो है, डेवलपर इसका लेंटारा है। जब इसका प्रपोजल आया था तो हम लोग करीब 14 या 15 रियल्टर थे जो हम लोग नॉटिंग हिल गए थे, लंदन, इंग्लैंड। और आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी, जूलिया रॉबर्ट और वो ह्यू क्या था उसका एक नाम, आधा नाम याद है, ह्यू। वो ये 2 उसके अंदर हीरो हीरोइन थे। ये हम लोग गए थे नॉटिंग हिल, वहां जाके हमने देखा तो वो सेम कंसेप्ट लाके नॉटिंग हिल के अंदर इन्होंने ये नॉटिंग हिल बनाया। नाम भी इसका फिर नॉटिंग हिल रखा। वही बुचर शॉप, बेकरी शॉप, इस जो नॉटिंग हिल मूवी में आप देखोगे वही सब कुछ देखने में मिलेगा। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं नॉटिंग हिल की। उसके बाद बिल्डर नंबर 1, देखो ये कौन सा बिल्डर आपको मिलेगा जिसने एक बार कहा था कि यहाँ पर
LRT आएगी, हमारे रिलीज होने से पहले LRT यहाँ पर आ जाएगी। ये उसने शब्द कहे अपने मुंह से। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, LRT लेट हो गई, बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट भी लेट कर दिया। कितनी ह्यूज जिसे कहते हैं लॉसेज है उसको। जब पता चला कि LRT वहां पर अब लेट 2026, उसने कहा 2027 में क्लोजिंग करूंगा। अब जब LRT का डिक्लेरेशन हुआ कि 2027 के शुरू में हमने मान लिया कि और 8 महीने लेट होगा, तो मीटिंग हुई हमारी मार्क मेडलबम, बैरी फेंटन के साथ। उन्होंने कहा आई वी कमिट व्हाट वी से, इसकी क्लोजिंग हम 2028 में करेंगे। सबको रिटर्न लेटर जा चुका है सबको कि वी गारंटी क्लोजिंग नॉट टू बिफोर 2028। और 6 महीने, एक साल लेट होने के बाद बिल्डर बैंकरप्ट हो जाते हैं। और ये देख लीजिए, जो क्लोजिंग 2024 में होनी चाहिए थी, इन्होंने लंबा खींच के 2028 कर दी। और वो लोग जिन्होंने ओरिजिनल बुक किया था वो वैसे ही मिलियनर बन गए। 3-3, 3.5, 4-4, 5-5 लाख इन्होंने लिए थे, आज वैसे ही 8-8, 9-9 लाख के हो गए। अब रही बात दूसरी, जो इनका क्वेश्चन है, जो अब अगर लेते हैं, आज नोटिंग हिल लगभग $1200 पर स्क्वायर फीट की एवरेज बिक रहा है, वो इटोबी कोई जगह है। और 2028 में आई एम प्रीटी श्योर, मतलब कि मैं क्योंकि रेडियो में बोल रहा हूँ, बड़ी खुल के बोल रहा हूँ, नोबडी कैन स्टॉप इट, मिनिमम $1400 पर स्क्वायर फीट। और जो मैंने अभी डिस्काउंट लेके दिए हैं, इसमें भी मैं बस लेकर गया था, यहाँ पर भी लेकर गया था, और जिस हिसाब से मैंने डिस्काउंट लेके दिया, प्राइस लिस्ट को लेके आ जाओ, उसको इतनी बुरी तरह बीट करूंगा मैं, इतने जबरदस्त डिस्काउंट पर स्क्वायर फीट लेस लेके दे दूंगा कि किसी ने अगर जिस रेट में खरीदा है ना रिसेंटली, आप उस रेट में बेच दोगे तो भी आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा। बस ये हिंट काफी है ना। अगर मान लीजिए किसी भाई ने किसी रेट में खरीदा आपसे 15 दिन पहले, आप उसके परचेज प्राइस में बेच दोगे, इतना डिस्काउंट जबरदस्त मैं आपको लेके दूंगा। ये मेरा टीम सबवाल का इंसेंटिव है बिकॉज ऑफ टॉप प्रोड्यूसर। बस अब क्या बताऊं, 100 से ज्यादा बेचे हुए मेरे खुद के 3, मेरा, मेरी बेटी का और मेरे बेटे का, तीनों के यहाँ पर यूनिट्स हैं। और इसका प्राइस यहाँ होने की उम्मीद है और इसकी क्लोजिंग 2028 में है। नोटिंग हिल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ऑन एयर चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मुझे कांटेक्ट कर लो। आप इसी चैनल में आके बोलोगे कि दैट वाज द बेस्ट डे, वो बहुत अच्छी सलाह थी जी। ठीक है जी। पीके जी, एक चीज ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, तो ਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बिल्कुल, क्योंकि इन एंटिसिपेशन थोड़ा बहुत बिल्कुल प्रॉपर हैगा। इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्राइस इंटरेस्ट विल बी लो, क्योंकि एक्टिविटी तो बढ़ गई ना सर। मैंने ही यहाँ पर इसी रेडियो चैनल में आके कहा हुआ है, आप गिरने तक की क्यों वेट कर रहे हो यार? जब पता है तो आज ही क्यों नहीं गिरे हुए प्राइस लेते? देखो, मैं सिंपल सी बात है, जिस वक्त डिमांड बढ़ जाएगी क्या बिल्डर इंसेंटिव देगा? सवाल ही उठता, वापिस ले लेगा वो। और क्या सेलर इस पर नेगोशिएट कर रहा है, क्या तब करेगा? सवाल ही नहीं उठता। तो आप दोनों चीज का फायदा उठाओ। आज प्रॉपर्टी लो, चाहे रीसेल में लो, चाहे इन्वेस्टमेंट करके प्री कंस्ट्रक्शन लो, और कम इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा लो। गिरने के बाद क्यों, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया। और ये रीजन है, बहुत एक्टिविटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोग इन एंटिसिपेशन, जैसे आपने कहा, होलसेल मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुकी है। पंकज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੌਰਗੇਜ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ CFP ਹਾਂ ਜੀ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ AI ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ
पिछले हिस्ट्री भी पढ़ ली है अगर, रेवोल्यूशन हर बारी आया है युद्धवीर जी। टैक्नोलॉजी जिहड़ी है वधदी चली गई है, टायर भी बने सीगे, कारां भी बनियां सी, सब कुछ प्लेन भी बने सीगे, फोन जिहड़े सीगे आपां घुमा घुमा के करदे सीगे, हुण उंगली पा के उहदे च जिहड़ा की रोटरी फोन हुंदा सीगा, एक फोन हुंदा सीगा, हुण हर दी फोन जेब च हैगा। लेकिन की होया, जॉब्स क्रिएट हुंदियां ने उहदे नाल, या पुरानियां ऑब्सलीट ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾਲ 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 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਐਜ਼ ਏ CFP, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੈਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ AI ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ, AI ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ AI ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, लेकिन वो डायनेमिक होंगे, तो उनके नाल लर्न करना पड़ेगा। मैं तो ये कहना। वेरी नाइस मुंगा साहब, मैं इसको एक सिंपल शब्द में कहता हूँ, वर्क हार्ड की का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन AI के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। वर्क स्मार्ट होगा, आप आराम से बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करोगे, ना ही खोते ऐसे भाग भाग कर। वो काम मेरे को भी पीछे सिर्फ कल की बात है, मेरे को किसी एक एजेंट ने कहा कि बहुत बचकाने वाली बातें पूछ रहा था, पर एजुकेट नहीं अपने आप को कर रहा था। मुझे कहता है मेरे लिए दुआ मांगना। मैं कहा दुआ मांगने से पहले पढ़ाई कर लेना, अपने आप को पढ़, दुआ भी तब तेरे को मिलेगी जब पढ़ाई करके तू अपने आप को एजुकेट करेगा, है? तो ऊपर वाला भगवान खुदा भी तुझे किक मारेगा, जब तू पढ़ ही नहीं रहा तो तेरे को क्या कोई दुआ देगा, मुझे बता। पहले वो मेहनत, दुआ में सारे काम नहीं चलते, दुआ के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। और ये जो है ना सर, दौलत की भूख, इसके अंदर भी आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। खोखली भूख जो है ना, मेरे को 4 लाइनें याद आ गई, कहो तो मैं बताऊं आपको। प्लीज। दौलत की खोखली भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल पड़े। ये स्टोरी है। आप अगर डिसिप्लिन करो अपनी लाइफ, घर के साथ भी चलो, बच्चों के साथ भी चलो, वो एसेट को भी एंजॉय करो और वर्क स्मार्ट करो, तो आपके पास हर चीज का टाइम है। बच्चों के लिए भी टाइम है, उनके साथ खेलने की उम्र बुढ़ापे में याद करोगे, वो भी टाइम है, दोस्तों के लिए भी टाइम है, काम के लिए भी टाइम है, और शरीर को भी तंदुरुस्त रख पाओगे। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वर्क स्मार्ट विद एजुकेशन। पढ़ो, पढ़ाई ये नहीं मैं कह रहा कि हायर एजुकेशन, पर अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो। AI ये काम करने जा रही है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। PK ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ PK जी, हाउ अबाउट फेस्टिवल कॉन्डोज इन वॉन, व्हाट डज ही थिंक? नवदीप बग्गा साहब का सवाल है। गो अहेड जी। पहली बात, लोगों की असाइनमेंट के ऊपर मैसेज बार बार आ रहे हैं, दिस इज रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइम। अगले साल उसकी ऑक्यूपेंसी क्लोजिंग आने वाली है, दैट इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। बस ये बग्गा साहब को जवाब मिल गया, होल्ड करो, अगले साल खुश रहोगे। जी ठीक है जी। एक हाँ जी, आखिरी एक सवाल है और उस तो बाद फिर रैप अप करने के हुक्म आ गए ने जी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सवाल हैगा जी अपना पंकज जी, आखिरी सवाल। हमेशा एक गल हुंदी है कि ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਬਰੀਫ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਫॉर दिस। जी बिल्कुल जसवीर जी, देखो इकोनॉमी वाइज हाले तक साडी इकोनॉमी ठीक चल रही है और US की इकोनॉमी तो छलांगा मार रही है, फिर मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल ची है। दूजी चीज, आने वाला टाइम जरा है, मैं कई बार कह चुके हैं लाइन कि डिफिकल्ट टाइम है साडे पास, ये मान के चलिया जी। ये साल साडा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि हले चीज़ां हले भी महंगियां ने और तुहाडे कोल उन्नी इनकम नहीं हैगी, लेकिन इनकम चलती पई है, जॉब्स क्रिएट होंदियां पईयां ने, सो वो चीज़ां चलदियां पईयां। सो डिफिकल्ट टाइम है, पैसा बचा के रखो। दूजी चीज,
ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਲੇ ਘਟਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਯੂਐਸ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਸਰ ਅਸੀਂ 60 ਸੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਦੇਤਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਘਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਐਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, 25 ਨਾਲ 25 ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੱਕ ਯੂਐਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 50 ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 25 ਤੋਂ 50 ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ 75 ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ 25 ਘਟਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 1% ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਘਟਾਵੇ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 1% ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ग्रोथ? ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੌਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼? ਔਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗਰੋਥ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਂਡੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ परसेंटेज वाइज, नॉट यूनिट्स वाइज, क्योंकि परसेंटेज वाइज ज्यादा प्रॉपर दिखेगा। सब तो ज्यादा ग्रोथ में जो नजर आ रही है लग्जरी हाउसेज, लग्जरी मार्केट के अंदर आ रही है, डिटैच के अंदर नहीं आ रही बिल्कुल भी। सेमी के अंदर उस तो घट, सब तो ज्यादा लग्जरी कॉन्डो अपार्टमेंट एंड टाउन होम्स ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੋਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਟੈਚ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 59% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 59 ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਸਕੇਵਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 90% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਲ ਓਵਰ GTA, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਆਲ ਓਵਰ GTA ਲਗਭਗ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੋਂਡੋ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ, मैंने पूछना उन्होंने फिर क्या देना कि इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट, जिदे को भी उन्होंने लिखा है आई थिंक इट्स नॉट ए बैड, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तक उसकी क्लोजिंग वगैरह आएगी तब तक मार्केट बहुत ठीक हो चुकी होगी एंड ही विल अर्न मनी, ही विल नॉट लूज मनी। बट अगर वो हुणे छत्ते पे ने जरा पंजाबी दा वर्ड है वो कहंदे मैं सैमनी दे दिया, दिस इज नॉट द राइट मार्केट टू सेल, दिस इज द मार्केट टू बाय जी। ठीक है जी, ठीक है। So thank you very much जी पीके जी। Any project, anything भी चीज अनाउंस करना चाहो लास्ट फोन नंबर। बस जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एनी real estate need, just there is no harm, no obligation, nothing, we don't charge anything, you can have a meeting with us और आप सानू मिल सकते हो, सानू मैसेज डाल सकते हो और मुलाकात करके तुसी डिस्कस कर सकते हो। नहीं भी लेना तां भी तुसी सानू मीटिंग करो, मेरा पैशन है, मैं मुलाकात करना, मैंने टेक्स्ट मैसेज पाओ ना दे नाल, अगर तुसी फोन करोगे वो फोन फॉरवर्ड हो जाएगा because of my shows और volume of calls। The best way for an immediate return of a call is text message with your name, और जिथे ना नहीं आंदा उथे मैं जवाब नहीं देंदा। आई मस्ट हैव योर नेम व्हेन यू टेक्स्ट मैसेज, इट्स ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट आल्सो फॉर ईच अदर कि अगर मैसेज पाके अपने नाम नाल पाओगे तो तुहानू कॉल इमीडिएटली वापस आएगी और असी वी कैन प्लान ए मीटिंग और व्हाटएवर यू हैव क्वेश्चन वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर, टू सजेस्ट। थैंक यू वेरी मच। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी। और शाम 6:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੀ 3:30 ਤੋਂ 4:30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।